Hello everyone, welcome to another learning video. I'm starting a new series based on futures and options. In this video, we'll only talk about futures. Now what are futures? See, futures are basically contracts traded based on monthly expiries. See, now there are a lot of advantages and disadvantages in futures. See, we'll consider them in terms of points. Okay, the first disadvantage or maybe an advantage is that you can only trade futures इन टर्म्स ऑफ लॉट्स एग्जाम्पल आपको लगता है कि एच डी एफ सी बैंक इज गोइंग टू गो अप तो आप उसके शेयर्स ले सकते हो एंड कितने शेयर्स लेने हैं वो आपके ऊपर है इधर यू कैन बाय वन और or 10 or 100 or whatever based on your capital, but in futures you can only buy in terms of lots and the lot is fixed for different share. Like HDFC Bank का lot size is 550. For example, Kotak Bank future का lot size is 400. So depending upon the company, उसके lot size are different, but usual margin required will be around 1.5 to 2 lakhs. Example, आपको HDFC बैंक लेना है तो number of shares like एक share लेना है तो 1593 rupees you need to have in your account. Whereas अगर आपको future लेना है तो you can only buy in lots, मतलब 550 का lot size है and you'll have to pay 1,62,000 as the margin money. Okay, now and example, if you want to buy Kotak Bank of future, so the lot size is 400 and you will require 2.34 lakhs, so you will require anywhere from 1.6 like 1.5 to 2.5 lakhs. Example, let's consider Cipla future. Okay, so you'll require 1.45 lakhs, so anywhere between 1.5 to 2.5 lakhs you'll require. Now, like how is the margin money calculated? See, futures are basically leveraged contracts. See, example, if you calculate, अगर HDFC बैंक का lot size is 550. See, this is an advantage as well as disadvantage also. Example, HDFC बैंक का lot size is 50. See, if you put 450 over here and buy, so value must be greater than or equal to 550. So either you can buy 550 or directly 1100. You cannot buy 600 or 650 or anything like that. So either 550 or 1100 or multiples of 550. Okay, so example, if you multiply 550 by the current market price, which is 1593, by 1593, okay, the margin required would be 8.76 lakh. Okay, but over here you can buy the September future at 1.62 lakh, which means you are getting a leverage of almost 4x or 5x or maybe 4.5x. See, usually you will get a leverage of 4.5x when you trade in futures, but there's a catch. Ki, see, now there are months written over here, ki September future, October future and November future. See, futures are valid for 3 months, the current month, the next month and next to next month. See, now that was the first advantage as well as disadvantage for some people, because you will require, see example, आपको लगता है HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी शेयर्स बाय कर सकते हो, 10 15 और whatever, बट फ्यूचर्स में you will have to pay 1.62 lakhs for September month future. ठीक है, तो you are getting a leverage of around 4.5x. See, that is the first point. Now that is actually a disadvantage for a lot of people, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होगा. और इसमें फ्लक्चुएशन कैसे होता है कि लाइक अगर HDFC बैंक 1% ऊपर मूव करता है तो इफ़ यू आर बाइंग लेट्स से 100 शेयर्स, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा 1.59 लाख, और HDFC बैंक अगर 1% ऊपर जाता है तो यू विल बी मेकिंग 1590, अराउंड 1590, और HDFC बैंक अगर 1% नीचे जाता है तो यू विल बी लूजिंग 1590, लाइक अप्रॉक्स 1600. बट अगर आपने फ्यूचर लिया हुआ है और HDFC बैंक 1% ऊपर जाता है तो आपको इस प्राइस का 1% का फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि आपके पास 1.5x का 1.5 नहीं 4.5x का लेवरेज है. तो अगर एक भी परसेंट HDFC बैंक ऊपर जाता है तो यू विल बी मेकिंग 8,700 bucks, और एक भी परसेंट अगर HDFC बैंक नीचे जाता है तो यू विल बी लूजिंग 8,700. सो द डिसएडवांटेज इज दैट कि इफ यू आर good at technical analysis, then this is good for you.
otherwise you will suffer a lot. See, that is the first point. Now second point, you can only trade in expiries. नाउ एग्जाम्पल, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो HDFC बैंक अगर आप आज लेते हो तो आपके ऊपर वो है कि आपको कब बेचना है वो. सी, यू कैन होल्ड इट फॉर डे 1-2 days or even a month or even a year or 5-10 years, whatever. But example, see this, today is 29th September, so these contracts are traded only based on months. See, example, September future, October future, November future. Now अगर आपको लगता है HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है, and if you buy September future today, but and the expiries are always on Thursdays. Every Thursday, every last Thursday of the month is known as an expiry. So आपने अगर फ्यूचर बाई किया आज और कल ही वैसे तो एक्सपायरी है, सो विल बाई फ्यूचर ऑफ अक्टूबर. तो वरना अगर आप ये बाई करते हो और HDFC बैंक कल नीचे आता है तो ये फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा और ये फिर वैलिड नहीं होगा. सो यू विल हैव टू बाई फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मतलब हर एक मंथ के एंड में ये फ्यूचर नल हो जाता है, तो फिर आपको ये स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाई करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज द एक्सपायरी. द नेक्स्ट एडवांटेज इज यू कैन प्ले डायरेक्शनल ओवर योर. मतलब आपको अगर स्टॉक्स कोई लेना है या बेचना है, तो अगर आपको लगता है HDFC बैंक यहाँ से नीचे जाएगा, तो इन इक्विटी यू कैन नॉट डू एनीथिंग. द मोस्ट यू कैन डू इज नॉट टू बाई द स्टॉक. बट वेराज इन फ्यूचर्स आप इसको सेल भी कर सकते हो. इफ यू थिंक HDFC बैंक नीचे जाएगा तो यू कैन होल्ड अ शॉर्ट पोजीशन फॉर मोर देन अ डे. वेराज इन इक्विटी आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल, आपने HDFC बैंक यहाँ पर बाई किया तो आप सिर्फ ऊपर का पोजीशन होल्ड कर सकते हो. आपको सेल या तो फिर यहाँ पर सेल कर सकते हो, आपको लगता है नीचे जाएगा तो, बट आप शॉर्ट पोजीशन को एक दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द T+1 सेटलमेंट. तो ये एक एडवांटेज है फ्यूचर्स में कि यू कैन होल्ड अ शॉर्ट पोजीशन. एग्जांपल, आपको लगता है कि किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ है या खराब रिजल्ट है या व्हाटएवर, तो आप उसको शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हो. सी एग्जांपल, ये जो HDFC बैंक का अक्टूबर फ्यूचर, सी दिस चार्ट इज HDFC बैंक का जो नॉर्मल चार्ट है इज नोन एज द स्पॉट चार्ट और दिस इज नोन एज द फ्यूचर चार्ट. सी HDFC बैंक का ये फॉल जो था और परसेंटेज डिफरेंस हमेशा सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक माइनर डिफरेंस. यहाँ पर जो HDFC बैंक करेक्ट हुआ लास्ट 3 days में, दैट वाज 3%. तो मतलब वैसे ही फ्यूचर में यहाँ टॉप से आज का क्लोजिंग इज अराउंड 4. अच्छा, वो अक्टूबर का था इसके लिए, बट इन सितंबर फ्यूचर इट विल बी अराउंड 2.93%. या तो आप यू कैन कैरी शॉर्ट पोजीशंस. और सी सितंबर मंथ का फ्यूचर का प्राइस, सी द स्पॉट का प्राइस इज 1593 फॉर ईयर. सितंबर फ्यूचर का प्राइस इज 1598. अक्टूबर का फ्यूचर का प्राइस इज 1602 एंड नवंबर का प्राइस इज 1608. सो देयर विल बी माइनर डिफरेंस इन प्राइसेस कि जैसे जैसे आप आगे नेक्स्ट मंथ में जाते जाओगे उसमें प्राइसेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा. Yeah, that is the next point. Key, you can also hold short positions. Yeah, now we'll discuss about the capital required. See, कोई भी आप स्टॉक ले लो, एग्जाम्पल टाटा स्टील. टाटा स्टील अक्टूबर फ्यूचर, टाटा स्टील का स्पॉट चार्ट. एग्जाम्पल, यू थिंक कि टाटा स्टील ऊपर जाने वाला है, तो आप टाटा स्टील के इक्विटी में कुछ भी नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हो, बट और आप फ्यूचर्स में भी कितने भी शेयर्स ले सकते हो. नहीं, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ लॉट. तो सी टाटा स्टील का लॉट साइज इज वेरी बिग, 850 शेयर्स इनटू द प्राइस इज 1295. सो 850 into 1295, which will be equal to 11 lakhs. So the usual margin required, if you have a decent capital of around 5-6 lakhs, minimum capital of 5-6 lakhs, then only you should trade in futures. क्योंकि इसमें जो fluctuations है 5-6 lakhs और around 6 to 10 lakhs का capital है तो ही आप futures में trade करो, वरना you can trade in equity. See, क्योंकि इसमें जो fluctuation होगा वो इस प्राइस के बेस्ड पे होगा, लाइक अराउंड 9 to 10, 11, 12 lakhs के बेसिस पे फ्लक्चुएशन होगा 1% का अप एंड डाउन. तो अगर आपके पास 2 lakhs का कैपिटल है और आप एक फ्यूचर बाय कर रहे हो
और अगर वो 1% भी नीचे चले जाता है बट उसका फ्लक्चुएशन होगा इसके अकॉर्डिंग, तो 11 लाख का 1% इज 11,000। तो अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है उसमें ही आपका 1% अगर डाउन हो गया तो आपको 11,000 का लॉस होगा ऑन अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs विच इज 5%, क्योंकि उसमें लेवरेज बहुत ज़्यादा है। मतलब 2 लाख में आप ये बाई नहीं कर पाओगे क्योंकि टाटा स्टील का फ्यूचर इज फॉर अक्टूबर फ्यूचर इज फॉर 3.53 lakhs, बट अगर एग्जांपल HDFC बैंक का फ्यूचर आपको बाई करना है तो विल रिक्वायर 1.63 lakhs, बट अगर एक भी परसेंट नीचे जाता है तो वो इसके बेसिस पे 8,76,000 का 1% होगा, तो वो 8,700 रुपीज़ का लॉस होगा 1% पे ऑन अ कैपिटल ऑफ 1.63 lakhs। तो मतलब 4% का लॉस हो 4-5% का लॉस हो जाएगा पूरे एंटायर कैपिटल पे। तो अगर आपके पास 10 लाख है और आप एक फ्यूचर बाय कर रहे हो 1.6 लाख का, तो उसमें आपको 1% का प्रॉफिट होगा तो 8,000 रुपीज़ मिलेंगे, 1% का लॉस होगा तो 8,000 का लॉस। तो फिर वो 10 लाख पे 8,000 का लॉस इज लेस देन 1% ऑफ द एंटायर कैपिटल। सो अगर आपके पास 6-7 लाख है या अराउंड 10 lakhs है तो यू कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स, बिकॉज दीज आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज। एग्जाम्पल टाटा पावर का देख लेते हैं एक बार। सी टाटा पावर, इफ यू टाइप देन ये है स्पॉट का चार्ट NSE एंड दिस द फ्यूचर का चार्ट सितंबर फ्यूचर। सी नाउ टुडे टाटा पावर वाज अप बाय 8.25%। तो आप टाटा पावर्स के एग्जांपल 100 शेयर्स लेते हो, सो देन द डिफरेंस वाज 140 से लेकर क्लोजिंग वाज 151, तो 11 रुपीज, सो यू विल मेक 1,100 रुपीज ऑन 14,000। ठीक है, अगर आप 100 शेयर्स लेते हो तो। बट टाटा पावर का फ्यूचर का लॉट साइज इज 6,750, तो दैट विल कॉस्ट यू 3 lakhs। बट आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 6,750 into if you had bought at 140, तो 9,45,000 का आपको मिल रहा था 3 lakhs में, तो दिस इज 3x का लेवरेज। तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, या तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, देन ओनली यू शुड ट्रेड इन फ्यूचर्स। एंड या those were the main points. Directional play you can play, then expiry, then capital allocation। मतलब अगर आपके पास एग्जाम्पल 10 लाख का कैपिटल है तो यू कैन एक्चुअली थियोरेटिकली बाई 4-5 लॉट्स। एग्जाम्पल इसको बाई करना है तो 1,62,000 और दिस 2 lots, 3 lots, 4 lots, 5 lots, yeah you can buy 6 lots if you have a capital of 10 lakh, but 10 लाख के ऊपर आपको एक ही लॉट बाय करना है अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। Yeah, so these were the main points of futures and options. Yeah, these are stock futures. You can also buy index futures. See example Nifty, अगर आपको निफ्टी लग रहा है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, then what will you do? Either you will buy Nifty Bs or you will buy Nifty futures, or calls, you will buy calls or short puts, but that options we'll discuss in the next video. So Nifty, see future, you are also will require 97,000 because the lot size is 50, and similarly Bank Nifty future, see September future, October future, November future, और एक बार सितंबर का थर्सडे लाइक टुमारो, जैसे ही कल का दिन खत्म हो जाएगा वैसे सितंबर फ्यूचर का फिर आपको दिखेगा नहीं, इसका चार्ट चले जाएगा और इसमें अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर फ्यूचर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो अगर आप कभी भी मंथ के एंड में ट्रेड कर रहे हो लाइक विद इन द लास्ट वीक, तो आप हमेशा नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर को बाय करो रादर देन द करंट मंथ फ्यूचर। तो वैसे ही आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर बाय कर सकते हो October future, and you won't be able to see the volume in Bank Nifty spot chart. See, if you click on volume, then it will not show you anything. See, no volume data, और आपको वॉल्यूम सिर्फ दिखेगा फ्यूचर्स के चार्ट पे इंडेक्स में इन केस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। या सो दीज वर द मेन पॉइंट्स विच आई हैड टू कवर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको ये कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस देख सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एंड
I tried to explain you in simple terms. So if you like the video, then do like the video, and if you have any doubts, then you can ask me in the comment section and I'll try answering that. And thank you for watching.